Good morning, students. So we are now back to our EVS class, and today's our topic is comprehension. What is comprehension? Do you know? Yes, comprehension means you are given a small passage or say paragraph. You have to read it, understand it on your own, and you have to answer the questions given below passage. Yes, I repeat once again. What is the meaning of comprehension? Means that you are given a small passage. You have to read it, understand it on your own, and then you have to answer the questions given below the passage. Okay. Now we will take out our textbooks and we will try to read it. Okay, students. So come on. Now students, open your comprehensive language learning series. Yes, in that open page number 10. Which page number? 10. Here you given topic of comprehension. First put today's date over here. As I said, what is the meaning of comprehension? Comprehension means that you are given a paragraph or say a passage. You have to read it, understand it on your own, and you have to answer the questions given below. Yes, students, I repeat, what is the meaning of comprehension? You are given a small passage or a paragraph. You have to read it, understand it on your own, and you have to answer the questions given below it. Okay, so today we will start with comprehension. Now let's read the passage. Yes. I am Tina. Tina. I am Tina. Again, I am Tina. What is this? I am Tina means मैं टीना हूँ, मेरा नाम टीना है. Yes, I am Tina means मैं टीना हूँ. क्या है? मैं टीना हूँ. Next, I am a girl. I am a girl. I am a girl मतलब मैं एक लड़की हूँ. क्या है ये? I am a girl. मैं एक लड़की हूँ. I go to Christ school. I go to Christ school. कौन से स्कूल में जाती है वो? I go to Christ school. मैं क्राइस्ट स्कूल में जाती हूँ. Yes. I study in class 2. ये क्या है? I study in class 2. मतलब वो सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ती है. कौन से स्टैंडर्ड में? सेकेंड स्टैंडर्ड. Yes. My mother's name is Meeta Ben. My mother's name is Meeta Ben. क्या है ये? मेरी मम्मी का नाम क्या है? मीता बेन. My mother's name is Meeta Ben. She is a teacher. She is a teacher. वो क्या है? एक टीचर है. क्या है? एक टीचर है. Yes. My father's name is Mohan Bhai. अब ये क्या है? My father's name is Mohan Bhai. मेरे पापा का नाम क्या है? मोहन भाई. क्या है? मोहन भाई. He is a tailor. मतलब वो एक टेलर है. टेलर मतलब दर्जी. क्या है? जो हमारे कपड़े सीता है, जो हमारे कपड़े स्टिच करता है, बनाता है. क्या है वो? He is a tailor. My parents love me very much.
माई पेरेंट्स लव मी वेरी मच। मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे मम्मी और मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माई पेरेंट्स लव मी वेरी मच। एवरी संडे दे टेक मी टू द गार्डन। एवरी संडे यानी कि हर संडे को, जब भी संडे आता है वो हर संडे को मुझे गार्डन लेकर जाते हैं। एवरी संडे दे टेक मी टू द गार्डन। हर संडे वो मुझे गार्डन लेकर जाते हैं। दे ऑल्सो बाय मैनी टॉयज एंड गेम्स फॉर मी। अब ये क्या है? हर संडे को वो मुझे गार्डन लेकर जाते हैं और मेरे लिए खिलौने और गेम्स भी खरीदते हैं। क्या है इसका मतलब? मेरे लिए खिलौने और गेम्स भी खरीदते हैं। ओके, आई लव देम वेरी मच। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव देम वेरी मच। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। So students, did you get any idea from the passage we have read just now? Yes, it's a passage on myself. Myself, लेकिन ये किसके बारे में है? एक लड़की जिसका नाम टीना है, वो अपने बारे में कुछ बता रही है हमें। यस, क्या बता रही है? मैं टीना हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं क्राइस्ट स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी मम्मी का नाम मीता बहन है, वो एक टीचर है, मेरे पापा का नाम मोहन भाई है, वो एक टेलर है, मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर संडे वो मुझे गार्डन लेकर जाते हैं, मेरे लिए टॉयज और गेम्स, खिलौने और गेम्स भी खरीदते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। यस, समझ में आया बच्चों? यस, सो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट वन क्या है? What is टीना's mother's name? ये क्या हुआ? टीना की मम्मी का नाम क्या है? Okay students, now let me tell you that अगर हमें अपने ऊपर वाले पैराग्राफ में से टीना की मम्मी का नाम पता चलता है तो हमें जैसा सेंटेंस दिया हुआ है वैसा ही नीचे कॉपी नहीं करना है। आई रिपीट, अगर हमें अपने पैसेज में से नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो हमें उसे सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। हमें उस सेंटेंस के वर्ड्स को अरेंज करके आंसर के फॉर्म में बनाकर नीचे आंसर में लिखना है। जैसे कि अब ये है, व्हाट इज टीनाज मदर्स नेम, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि माई मदर्स नेम इज मीता बेन। माई मदर्स नेम इज यानी कि हमारे मम्मी का नाम, पर वो हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। हमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज टीनाज मदर्स नेम। क्या पूछा गया है? टीनाज मदर्स नेम। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? टीनाज मदर्स नेम इज मीता बेन। टीनाज mother's name is मीता बेन। समझ में आया बच्चों? हमें जैसा पैसेज में दिया है वही का वही सेंटेंस कॉपी नहीं करना है। उस सेंटेंस के वर्ड्स को अरेंज करके आंसर के फॉर्म में लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज टीनाज मदर। अब ये क्या है? टीना की मम्मी क्या है? तो हम इसमें ढूंढेंगे। यस,
I go to Christ school, I study in class 2, my mother's name is मीता बेन। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। कहाँ तक? यहाँ तक। टीना's mother's name is मीता बेन। अब क्या है? टीना's mother क्या है? तो she is a teacher। हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपरली कैसे लिखेंगे? टीना's mother is a teacher। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज टीना गो एवरी संडे? अब इसका क्या मतलब होता है? टीना हर संडे कहाँ जाती है? वेयर डज टीना गो एवरी संडे? टीना हर संडे कहाँ जाती है? तो हम पैसेज में से ढूंढेंगे इसको। यहाँ तक तो हम पहुंचे थे, शी इज अ टीचर। अब क्या आता है? माई फादर्स नेम इज मोहन भाई। ये नहीं चाहिए हमें आंसर। ही इज अ टेलर, उसके बारे में तो कुछ पूछा नहीं है हमें इसमें। माई पेरेंट्स लव मी वेरी मच, ये भी नहीं चाहिए। एवरी संडे, नाउ देयर यू कम, एवरी संडे। दे टेक मी टू द गार्डन। अब इसको हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे कि एवरी डे दे टेक मी टू द गार्डन, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। हमें क्या लिखना है? एवरी संडे टीना गोज टू द गार्डन। Yes, every Sunday Tina goes to the garden। तो आपको समझ में आया बच्चों कि कैसे करना है? पहले कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है, समझना है, और फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। लेकिन कैसे देना है? कॉम्प्रिहेंशन में से उठाकर सीधा पेस्ट नहीं करना, सीधा कॉपी नहीं करना है, उसे सेंटेंस को अरेंज करना है, वर्ड्स को अरेंज करना है, और फिर इसमें लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रू और फॉल्स। अब इसमें क्या है? टीना इज अ बॉय। टीना इज अ बॉय मतलब टीना एक लड़का है। हाँ, टीना लड़का है? नहीं, हमने पैसेज में क्या पढ़ा है? आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। तो ये सेंटेंस गलत है, तो इस पर हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट वन, टीना स्टडीज इन क्लास 1। टीना पहले क्लास में पढ़ती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है टीना? नहीं, वो कौन से क्लास में पढ़ती है? टीना सेकेंड क्लास में पढ़ती है। आई स्टडी इन क्लास 2, तो ये भी गलत है। मीता बेन इज अ हाउसवाइफ। मीता बेन हाउसवाइफ है जो घर पर रहकर काम करती है? नहीं, वो क्या है? शी इज अ टीचर, तो ये भी गलत होगा। मोहन भाई इज अ टेलर, वो क्या है? टेलर है। टेलर कौन है? जो कपड़े बनाता है। यस, तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि माई फादर्स नेम इज मोहन भाई, ही इज अ टेलर। ओके बच्चों, अब लास्ट वाला, टीना's पेरेंट्स डू नॉट बाय एनी टॉयज एंड गेम्स फॉर हर। वो उसके लिए कुछ नहीं खरीदते, ये तो गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है दे ऑल्सो बाय मेनी टॉयज एंड गेम्स फॉर मी, तो ये क्या हुआ? गलत। समझ में आया बच्चों? यस,
अब हम क्या करेंगे, नीचे दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें टीना इज अ डैश, टीना क्या है, ऊपर क्या दिया हुआ है, आई एम अ गर्ल, तो टीना इज अ गर्ल। ओके, नेक्स्ट वन, एवरी डैश टीना's पेरेंट्स टेक हर टू द गार्डन। अब ये क्या है, हर संडे टीना के पेरेंट्स उसको कहाँ लेकर जाते हैं, गार्डन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एवरी संडे। ओके, नेक्स्ट वन, डैश इज अ टीचर। अब इस पैसेज में कौन टीचर है, टीना की मम्मी, उसका नाम क्या है, फाइंड आउट इन द पैसेज। मीता बेन, यस। नेक्स्ट वन, मोहन भाई इज अ डैश। मोहन भाई क्या है, मोहन भाई इज अ टेलर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टेलर। नेक्स्ट वन, टीना गोज टू डैश स्कूल। टीना कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन से स्कूल जाती है, क्राइस्ट स्कूल। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने आज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, समझा, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए, ट्रू और फॉल्स किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए। अब उसी तरह से आपको ये वाला कॉम्प्रिहेंशन जो पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है वो अपने आप करना है। You have to read the passage, understand it on your own, and you have to answer the questions given below it. ये स्टूडेंट्स, आई रिपीट, हमने जैसे ये कॉम्प्रिहेंशन किया है वैसे ही आपको ये वाला कॉम्प्रिहेंशन अपने आप पढ़ना है, समझना है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन as we have done in our textbook, and one comprehension I have given you as a homework. Try it, read it, understand it, and try to solve the questions on your own. In the next class, I'll provide you the answers, and after the video lecture, I'll also provide you some worksheets of comprehension as a PDF form. So you have to do it in the same